والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. یہ چھِ خصوصی درس ییٚمیُک اکھ سیشن اَسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ اَمہِ برونٛہہ کوٚر اور یَتھ سیشنَس تھایو اَسہِ ناو ٹایم مینیجمنٹ ٹِپس فار سکسیس. نعم تہٕ اَکہِ حدیثِ مُبارکہٕ سۭتۍ کَریو اَسہِ شروٗع سُہ درس کٲنٛسہِ مےٚ یاد مفہوٗم لٲزمی چھُنہٕ کینٛہہ کہِ تٔمِس آسَن عربی الفاظ یاد. مفہوٗم یُس اَسہِ صحیح بُخاری ہُنٛد حدیث نمبر 6412 مفہوٗم کٲنٛسہِ یاد کاپی وٕچھنہٕ بغٲر بِسرا یِہوٚے مینیجمنٹ کٔروا لُکھ چھِ کَران اکثر لُکھ چھِ کَران لُکَن ترٛٲیِو برونٛہہ اکثر لُکھ چھِ دۄن معاملَن اَندَر غفلت کَران. کیٛاہ الصحة والفراغ. اَکھ گٔے صحت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ صحیح آسہِ بٮ۪مار آسہِ نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ گٔے فرصت ییٚلہِ أمِس فِرٛی ٹایم آسہِ. اور بیٚیہِ وَنہِ اَسہِ اِمام الشافعی رحمہ اللہ سُنٛد اَکھ قول یُس زَن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ چھُ مدارجُ سالکیٖنَس منٛز ذِکر کوٚرمُت. یہِ ہسا چھُ فرمومُت اِمام شافعی رحمہ اللہ. سُہ ما کٲنٛسہِ یاد نعم الوقتُ نعم کیٛاہ اوس الوقتُ کالسیفِ ان لم تقطع یقطع. مٔشتٕے گوٚمُت. وقت چھِ تلوار اگر نَے تُہۍ یہِ ژٔٹۍوُن یہِ ژَٹہِ تۄہہِ. گوٚو اِمام شافعی رحمہ اللہ کیٛاہ کَران بیان الوقتُ کالسیفِ ان لم تقطع یقطع فیقطع. وقت چھِ تلوار اگر نَے تُہۍ یہِ ژٔٹۍوُن یہِ ژَٹہِ تۄہہِ. مطلب یِتھ پٲٹھۍ أمۍ فلسفِیَن ووٚن آی ہیو ویسٹٕڈ ماے ٹایم نو ٹایم از ویسٹِنٛگ. مےٚ ہسا کوٚر وقت ضایع وۄنۍ چھُ وقت کَران مےٚ ضایع. کلیئر. تو یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اور تھوڑا کرو أسۍ رِمایِنٛڈ پہمتھ تِکیٛازِ اَسہِ وَنیو سٲرٕے فارمولا چھِ زٕ اَسہِ یاد ہے کیا اوس گیپس اینڈ مسٹیکس. ایک ہمارا فارمولا تھا گیپس اور دوسرا ہمارا فارمولا تھا مسٹیکس. یہ ہم نے اوائڈ کرنے تھے. ٹھیک. تو سب سے پہلی بات گیپس میں ہم نے کیا پڑھا جی کیا معنی ہے اس کا گول پرپز ایم ٹارگیٹ اور کچھ مقصد. اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے اسی گول اورینٹڈ آپ نے سارا کام کرنا ہے. تۄہہِ چھُ وٕچھُن میانہِ زندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ تۄہہِ چھُ وٕچھُن أزکہِ دۄہ اعتبار میانہِ دُہُک مقصد کیا چھُ. آپ اس کو بریک اپ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو منتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ویک یا آپ پوری زندگی ایک گول بنا سکتے ہیں. کلیئر. یہ گو الحمد للہ. پھر اے ہوتا ہے ارینج کیا کرنا ہے ٹائم شیڈول کو آپ نے ارینج کرنا ہے. اس میں ہم نے بتایا آپ کو ٹائم ٹیبل کس طرح سے بنائیں گے آپ. میل ٹائم اپنا پریئر ٹائم اپنا پھر اسٹڈی ٹائم اپنا. ریڈنگ کب کریں گے آپ لرننگ کب کریں گے آپ وہ نہیں ایسے تو لیکن ریئلسٹک ہونا چاہے. یہ نہیں کہ آپ نے 5 منٹ رکھے تو اس کام میں آپ کو 15 منٹ لگیں گے. ایز پر آپ تجربہ کریں گے پہلے اسی اعتبار سے پھر اس کو بنائیں گے. کلیئر. یہ ہو گیا ہمارا. پھر پریورٹائز. کس کو پریورٹائز کرنا ہے اتھ منٛز وَنیو اَسہِ بنایو سُہ خانہ اکھ یاد ہے کیا بنایا تھا. ایک بنایا تھا امپارٹنٹ اور ارجنٹ. پھر امپارٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. پھر
urgent but not important, फिर neither important not important not urgent, ठीक। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको जो इम्पॉर्टेंट भी है और पहले हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट को, जैसे एग्जांपल अल्लाह बचे कहीं को बीमार, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, स्टडी करेगा कि डॉक्टर के पास जाएगा, ये सबसे पहले डॉक्टर, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है ना, सेहत से ही आप पढ़ सकते हैं। वो गडनती युत प्रायोरिटी का यस कम इम्पॉर्टेंट जैसे अर्जेंट, फिर इम्पॉर्टेंट लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम अभी नहीं आया, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है, 2 महीनों के बाद एग्ज़ाम है, 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, लेकिन तैयारी कब से करेंगे, इसकी बात है। क्यों, वरना आपने फिर एक वीक में सारा कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसा होता है अक्सर तौलाब के साथ। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करें, ये एग्ज़ाम वो तो हफ्ते में सब कुछ करते हैं, फिर उनको लगता है पाठ, फिर कहते नहीं कर सकते। लिहाजा आज से ही, अभी ये अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम देना ही देना है, अभी ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट। तो आप आज से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। वुचो अगर तुम सिलेबस सवाल 50 सवाल 100 सवाल 200, तो यह अगर ये साथ एग्जाम ऐलान गए 1 हफ्ते ब्रो पे हफ्तस मज कर 200 सवाल याद, तम ना बेहतर कि रेत ब्रो 1.5 रेत ब्रो तुम करो एक सवाल याद। आज आप 1 सवाल याद करेंगे, कल दूसरा, परसों तीसरा, इस तरह से आप एक एक करके आपको आसान हो जाएगा। वरना आपने एक ही वक्त में बैक वक्त सारा कुछ करना पड़ेगा, ये कुछ मुश्किल है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा। फिर हमने बताया कि अर्जेंट होता है कभी लेकिन वो इम्पॉर्टेंट, या इसी तरह से नहीं इम्पॉर्टेंट तुझे वलिस गसन सड़क पे बिहन वान पेन पे बिहन क्लियर पार्कन नचुन, ये क्या है, नहीं इम्पॉर्टेंट है नहीं अर्जेंट है, ये इनको तर्क करेंगे आप, क्लियर। यानी जो आपका फजूल टाइम में जा रहा है आप इस टाइम को बचाएंगे। फिर हमने क्या बताया, एस स्मार्ट प्लान। स्मार्ट प्लान में क्या हमने बताया, अस क्या वो अश्वन की ये रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब इस तरह से, सपोज आपको कोई सोच आ गई, आप पढ़ रहे हैं, कोई मसला आ गया, आप इस वक्त उसको एड्रेस नहीं करेंगे, अलबत्ता रिटन आप इसको लिख के रखेंगे। फिर आप इस मिस्टर थॉट को कब टाइम देंगे, जब आपने इसका टाइम रखा है, ये हो गया आपका मिस्टर थॉट। इसको आप कब टाइम देंगे, उस वक्त टाइम देंगे जब आपने इसके लिए टाइम मखसूस किया है, उस वक्त आप इसको देंगे। या इसी तरह से सोशल मीडिया जो हमारे बहुत सारे चला रहे हैं स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, पीते पीती व्हाट्सअपस नज़र, पीते पीती फेसबुकस नज़र, यूट्यूबस दी नज़र, करेगा क्या। इसके लिए आपने सुबह 15 मिनट, आपकी मर्जी, आप शाम को ही कर सकते हैं, सुबह को ही कर सकते, सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट, बस दैट इज़ एनफ। इन 15 मिनट में आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देखेंगे, इंपॉर्टेंट कोई मसला होगा, उसको आप दिन भर फिर आप नहीं चलाएंगे। ये शेड्यूल आपने बनाना है, ये सिस्टमेटिक आपने बनाना है, क्लियर। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला जो पार्ट था इसका टाइम मैनेजमेंट का, ये हमारा पिछले दर्स में ही था। आज हम कहाँ से आएंगे, मिस्टेक का मतलब क्या है, ठीक। तो मैं दिम तय दिन एग्जाम्पल तो इंशाल्लाह। तो ये मिस्टेक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी। सारी खुद गोडनुक जो एम है फॉर मल्टीटास्किंग, एम फॉर मल्टीटास्किंग। मिस्टेक यह आम टाइम मैनेजमेंट दम सेशन, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है ये मिस्टेक क्या होता है, ये हमारी फार्मूला है टाइम मैनेजमेंट के लिए, टिप्स फॉर सक्सेस। हम किस तरह से कामयाबी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं और स्मार्ट वर्क किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहली बात है एम फॉर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसको हम कहेंगे, किसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, हाँ कोई अच्छी सी डिफिनेशन। हाँ, एक ही टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम करते हैं, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा काम करना है, ये आपने अवॉइड करना है। मिस्टेक उसको अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहले आप अवॉइड क्या करेंगे, मल्टीटास्किंग। आप इस तरह नहीं करेंगे। कामयाबी के लिए उसूल ये है, आप पहले एक काम को लेंगे जो आपने टाइम शेड्यूल में बनाया है, इस शीट में बनाया है, पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है उसको कंप्लीट। आज क्या करना अक्सर स्टूडेंट वो कहते हैं कि जज्बे में आकर पेशन होता है उन्हें दिपान अस करो सोरे,
तफसीर भी उठाते हैं, फ़िक़्ह भी उठाते हैं, हदीस भी उठाते हैं, उसूल भी उठाते हैं, नहीं। अगर आपने स्टडी करना है, सबसे पहले आप देखेंगे मुझे अहम क्या है। सबसे पहले आप मसलन जैसे आपका सिलेबस है, ये बनमन क्लासन सिलेबस इसके पे पकान, सबसे बुनियादी तौर पर बुनियादी कायदा होता है ना, गोड कायदा थावान, उसके साथ जो लुगा होती है, और तीसरी इस्लामियात गो बुनियादी। उसके बाद थोड़ा सा जब आगे आप मरहले में आएंगे तो फिर आपको मज़ीद सब्जेक्ट दिए जाते हैं, क्लियर। फिर आगे जाकर जैसे इनका क्लास है, इनका तो तकरीबन सारा अरबी में है, नमन सारी किताब अरबी मं, तो ये फिर अरबी में पढ़ते हैं। और फिर इसमें फ़िक़्ह के लिए, उसूल के लिए, तफसीर के लिए वो अलग अलग चीज़ें हैं। गो कामयाब तालिब इल्म गो सू युस न इकवटे आसि सरसी थप दिवान यह ते अड़हन यह ते अड़हन यह ते अड़हन, नहीं। आपने मसलन सबसे पहले तफसीर उठाई है, तो आपको मसलन पारे अम की तफसीर करनी है, तो सबसे पहले आप पारे अम की तफसीर को कंप्लीट करेंगे, रेत लगिन ज़रियत लगिन, तब तक आप कोई और सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे जब आप खुद स्टडी करते हैं। तम पतन उसके बाद आप हदीस की कोई किताब उठाएंगे, आपने उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप फ़िक़्ह की कोई किताब उठाते हैं, उसको आप कंप्लीट। इसी तरह से आप बैक वक्त सारे काम एक साथ नहीं करेंगे, बल्कि स्टेप वाइज, हाँ मरहला में स्टेप वाइज। पहले एक काम इसको कंप्लीट करो, या घर में आपके 10 काम होते हैं, 5 काम होते हैं, तो यदि योर करी अड़हन, तो ये सारा मसला फिर उलट जाएगा। आप क्या करेंगे, पहले एक काम जो अहम है, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी आपने देखनी है ना, यहाँ पे मेरे पास अहम कौन सी काम है। सपोज आपके पास 6 काम है, आपने प्रायोरिटी बनाई है, सबसे पहले अर्जेंट को रखा है और फिर इम्पॉर्टेंट को रखा है। इसी तरह से आपने एक लेवल बनाई है, गोनेथन कथ पर करो तो फोकस, जो सबसे टॉप पर है आप उसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरा काम करेंगे, उसके बाद तीसरा काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ेंगे सारी कामें। अलबत्ता एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक जगह पे हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक जाए हेको बैक वक्त अक खुद ज़्यादा काम कर, वो है जो आपका डेली रूटीन है। डेली रूटीन मतलब आप उसके लिए आपको अलग से कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मॉर्निंग वॉक को हम जाते हैं, अगर कहाँ से गसान मॉर्निंग वॉक गसान इसने कोई कुछ दर्स लिया है, इसी है दर्स बोझा, मोबाइल चल रहा है, ये दर्स सुन रहा है, यहाँ अपना मॉर्निंग वॉक भी। कोई ड्राइविंग कर रहा है, इशू ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, यहाँ पे इसने दर्स लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। यहाँ ड्राइविंग कर रहा है, क्या ड्राइविंग आसान पता क्या वन त्यूत सोचुन जो फिर एक्सपर्ट होता है इसमें, वो खुद ब खुद इसको चलाता है, और यहाँ से क्या कौन सा काम कर रहा है। अलबत्ता ड्राइविंग के थ्रू ये फ़ोन भी नहीं चलाएगा, क्या अत गई ना तप आवर इतने सिर्फ माइंड, तो वहाँ पे कोई ऑडियो क्लिप कोई दर्स सुन रहा है या पर्ची पानी गाड़ थी चलावन, क्लियर। या हमारे घर में जो काम होते हैं, अच्छी ज़मींदारी पेवान करें, वार मज पेवान गसन, हमें पता है कि मसलन आज टमाटर ज़मीन खनन या आज टमाटर ज़मीन शहरन, इस तरह के काम ये हमें पता है इसमें 4 घंटे लगेंगे, 3 घंटे। तो इन 3 घंटों को पहले ही आपने शेड्यूल बनाना है कि ये 3 घंटों में बोल भाई ये दर्स, तो फिर आपने रेडी किया होगा अपनी अवेलेबिलिटी, ये चीज़ें होगी, तो वो अपने एतबार से ये 3 चीज़ें बनाएगा, 3 ऑडियो दुरूज बनाएगा। ये तौर वाति तत कर कम ज़मींदारी हज ती, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हासिल। मगर यम गसन आसनि डेली रूटीन, यम सत इंटरमिंगल गि और योर गड़बड़ गसन, क्लियर। यम डेली रूटीन क्या काम आसान, तथ मज इंसान ब्या कम करान, उसमें कोई कबाहत। लेकिन उमूमी तौर पर आप क्या करेंगे, आप मल्टीटास्किंग से बचेंगे, क्लियर है ना। नाम इसके बाद है हमारा मल्टीटास्किंग के बाद हमारा है आई फॉर, यानी ये मिस्टेक हमने अवॉइड करने हैं। गो गोडनिच के अवॉइड करूँ मल्टीटास्किंग, एक ही वक्त में 2 काम 4 काम 5 काम नहीं करने हैं, बल्कि एक वक्त में एक काम उसको कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इनकम्प्लीट वर्क, इनकम्प्लीट वर्क क्या मतलब, अच्छी आदत आसान, हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन 10 लिखने हैं, हमने 2 लिखे, वहाँ लोग याद करूँ, 2 सवाल याद किए, वापस आए बेइज्जती लिखने, फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा, ये भी प्रॉब्लम नहीं। अपने अधूरे काम को आप न छोड़े। आपने फिलहाल आपके 10 क्वेश्चन है, आपने रिटर्न करने, आप लिख लीजिए पहले इन्हें, इसको कंप्लीट करें। फिर आपके जो शेड्यूल जो शेल्फ है आपका शीट, आप जो आपके काम है, उस एतबार से आप क्या करेंगे, फिर दूसरा काम उठाएंगे। ये तो टाइम गोडनिच काम कंप्लीट गए, आप दूसरा काम
नहीं उठाएंगे। नहीं कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते, लेकिन स्मार्ट प्लान ये नहीं है। ये कामयाबी तेल के आप किसी काम को अधूरा न छोड़े। कोई काम आपने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये क्या आदत स्टूडेंटन, ये कोई क्लास लेते हैं, फिर बड़े जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ गए ना दा बाद तुरने वह के, या कोई काम उठाया बस करे ये वहीं बस करिए पठन, मैं हर दिन ये करूँगा, अपना शेड्यूल बनाऊँगा, 4 दिन गसान 4 दिन बाद फिर उस शेड्यूल को ही तोड़ता है। ये गई ना कामयाबी। कामयाबी ये है आप किसी काम को अधूरा न छोड़े। आप किसी काम को आपने उठाया प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट करें उसे पहले, उसके बाद दूसरा उठाए, फिर उसको कंप्लीट करें, फिर तीसरा, फोर थाप योर थाप ना। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है, जो हमारे टास्क शीट में है उसको आपने कंप्लीट करना है। फिर है हमारा एस फॉर, एस से क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किसको कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए अब आपने एक प्लान बनाया, क्योंकि आपको यहाँ पे भी नज़र है ना क्या करना है। आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल अपना बनाया। सपोज आपने 24 आवर्स का एक टाइम टेबल बनाया। बकर काम सुबह वदबा अला सबीली मिसाल 6 बजे, तो 6 से 6:30 बजे तक फजर की प्रेयर, उसके बाद तिलावत 6:45 या 7 बजे तक, 7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैं फिर याद करूं, क्योंकि सुबह का टाइम हमने बताया ना अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम ने इसमें बरकत की दुआ की है। सुबह के टाइम पे आप ज़्यादा याद करेंगे, प्रायोरिटी इसी को है। अब आपने 8 साढ़े 8 तक याद करना है, रखा ये। उसके बाद 8:30 पर आपने कुछ काम लिखना है। 9 साढ़े 9 पे आपने स्कूल की तैयारी करनी है। क्लियर। तो उस स्कूल की तैयारी में आपने आधा घंटा 10 बजे तक, 10 बजे स्कूल, तो स्कूल में फिर खुद टाइम टेबल है ना, उसमें तो आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप 3 बजे वापस आ गए, 3:30 बजे वापस आ गए। अब यहाँ पे अगर नमाज का टाइम है तो पहले आप प्रायोरिटी नमाज को देंगे, उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे वगैरह, चाय वगैरह जो भी आप नोश करना चाहेंगे, टाइम पतन बे अपने तरीके से। अब 4 से 5 तक मैथ, सपोज 5 से 6 तक ये, लेकिन इसमें आप खेलने के लिए भी कुछ रखेंगे। ठीक, अगर स्कूल में भी आप खेलते हैं तो आए वो तंग 5-10 मिनट मिस्टर थॉट कहा ना हमने, इसमें भी, या आपने सोशल मीडिया का, इसके लिए 15 मिनट भी गो। आप इसी शेड्यूल से चलेंगे। मगर ये एक दिन का काम, आज आपने टाइम टेबल बनाया, कल इस पर अमल किया, परसों भी किया, युथी 3 दो गए, हेलो फैजान कह बस गर वाला फलन जगह गो चक्रस, मकलियो प्लान खत्म। अब प्लान ही ख़त्म कर दिया। एक दोस्त के कॉल ने आपका सारा इस पे पानी फेर दिया। नहीं, आप में कमिटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी, सेल्फ डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए, डेडिकेशन और कमिटमेंट। क्या होता है डेडिकेशन और कमिटमेंट? डेडिकेशन होती है कि आपने ये अज़म करना कि मुझे करना ही करना है, मैं शेड्यूलस पे पकड़, कुछ भी हो जाए क्या दोनी सख्ती। येली इंसान ना कुछ चीज़ बनावान आदत, अमिस गोड गोड यवान, येली इंसान ना गोड चलावान गाड़ी, यह वुचान गोड ब्रेक कुन ते, हैंडलस कुन ते, योर मा आव कह, यह बिचौर परेशान, यपर में यी कह, युथी अमिस यह आदत गो ना, फिर नहीं देखता है, अमिस पे खोरन कुन वुचुन, पे हैंडल चल होर यह पन्न खाब ख्याल मज, योर यह गाड़ी चलावान, कोई मसला नहीं है। क्यों? तिकाज अमिस बना पते डेली रूटीन। वो इसी तरह से आपको पहले सख्ती आ जाएगी, थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएंगे, कैंसन दोहन अत पे पकनस, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। आपने डेडिकेशन दिखानी है कि मुझे पुरअज़म होना है, मुझे इसी शेड्यूल से चलना है, प्लस कमिटमेंट। कोई दोस्त का फ़ोन आ जाए, मेरा इस वक्त पढ़ने का टाइम, सॉरी ये वन ब्रोट कुन तह बड़ प्रॉब्लम, हम नहीं कहते, एक बड़ा मसला है। अश आदत, हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, कहीं को ना फोन कहना परवाह, अरे नो भी बोलना सीखे, ये बड़ कामयाबी। याद थे जो किसी को नहीं बोलना सीखो, कंस वन सोद ना मे वनकस टाइम, मेरा एक शेड्यूल है, मेरा अपना टाइम टेबल है, कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो है दोस्ताना मकल नहीं, इससे बढ़कर आपका कोई नहीं है, ये कामयाबी है आपकी। लिहाजा गि न वन तो हेचुन, बल्कि ये बोलना चाहिए। मैं इसी को बहादुर कहता हूँ। हर कोई वन ठीक हज आज क्या बई मई, ये सारा शेड्यूल चौपट हो जाएगा। लिहाजा नो भी बोलना सीखो। क्लियर? तो इसमें आप डेडिकेशन और इसमें आप कमिटमेंट के साथ वो आज़म तक गई आसन, और इस पर फिर उतरना है। ये नहीं कि मामूली कुछ हुआ मकलो प्लान, जैसे ना आपका आदत है
کہ سکول مز گئی چھٹی تو ڈائریکٹ ماتامال وۄنۍ گٔیو ماتامال دی ہے انسان راتس کھنڈس نظر 4 دۄہ 5 دۄہ 6 دۄہ یہ عجیب معاملہ ہے کیا مطلب گوٚو سکول مز گئی چھٹی تو سٲرسٕے چھِ اَسہِ چھٹی کَرٕنۍ اَسہِ چھِنہ پتہٕ کٕہٕنۍ ذمہ دٲری درسگاہ چھِنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ ذمہ دٲری درسگاہ چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ آسان پَرُن دیکھیے آپ کا ذہن کیا ہے یہ کون سی کامیابی آپ 4 دن ماتامال بہو تُہۍ 4 دۄہن 5 دۄہن اور پھر ان 5 دن کا جو آپ یہاں پڑھ رہے یا یہاں پڑھایا گیا وہ پھر آپ ریکٹیفائی کیسے کریں گے لہٰذا یہ صحیح سوچ نہیں ہے اب کیا کریں گے کمٹمنٹ ایک دن ٹھیک چھُ گۄڈٕ گژھِ نہٕ اِنسان گژھُن ہفتہٕ پتہٕ ہفتہٕ ماتامال کیا مجبوری ہے کیا مجبوری ہے سال میں 2-3 مرتبہ ٹھیک ہے عید سال چھُ آسان وہ امپارٹنٹ ہے کوئی فنکشن ہوگی امپارٹنٹ ہے اور کُنہِ ساتہٕ یہِ دِل 2 رٮ۪تۍ 3 رٮ۪تۍ آپ کیا یورٕ گوٚو معموٗلی کہِ اَسہِ چھِ آز سکوٗل منٛز چھُٹی سیوٚد سا ماتامال ماسہِ چھُ کیٛاہ تام بیٚہہ سا 10 دۄہن تَتہِ پۄپھِ چھُ کیٛاہ تام 15 ژےٚ کیٛاہ کَرُن 15 دۄہن تَتہِ اَسہِ کیٛاہ کَرُن 10 دۄہن تَتہِ پتہٕ چھِ گرِکی یِوان تنگ ہے وۄنۍ یہِ تہٕ گرٕ عجیب معاملہ ہے خود ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اَسہِ ما لاس ہورٕ گژھان بظٲہر اگر اَسہِ کُنے جایہِ آسہِ نا پَرُن نہٕ گژھُن کِہیٖنۍ مگر جو اپنا ایک طالب علم کا ایک ڈھکرم ہوتا ہے نا سُہ چھُ ختم گژھان یہ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ عٲشیان عشرتن طالب علم ایسا نہیں میں نے بار بار بتایا طالب علم سینسٹیو ہونا چاہیے سیریس ہونا چاہیے کلیئر اور اپنا جو یہ ورک ہے اپنا جو یہ ایم ہے اس کے پیچھے ہونا چاہیے أمِس گژھِ ٹارگیٹس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ نظر ٹارگیٹ ما گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ مزن منٛز حٲصِل کلیئر کہتے ہیں کہ علماء ہم کہتے ہیں علماء نے چھ منقول وہ کہتے ہیں لا یستطاع بعلم براحة الجسد یا لا یستطاع العلم براحة الجسد جسم کو آرام دینے میں علم حاصل نہیں ہوتا آپ نے اس میں لیے تکلیف اٹھانے ہیں مشکلات اٹھانے تو آپ کیا کریں گے آپ سیلف ڈسپلن میں 2 چیزیں یاد رکھیں گے کیا کیا ڈیڈیکیشن عزم مجھے نا اس پلان پہ چلنا ہے کچھ بھی ہو جائے کمٹمنٹ ایک بار کر دی پھر نہیں توڑنی ہے ہاں کلیئر اس کے بعد ہے ہمارا ٹی اس کے بعد ہے ٹی ہوتا ہے ٹی فار ٹولز ٹی فار مارکر سے بدل ٹی فار ٹولز ٹولزن کیا کرن ٹولز کو کیا کرنے ہیں ٹولز کس کو کہتے ہیں پہلے یہ میں بتاؤں میں نے کیا لکھا یہاں پہ ٹولز کیپ یور ٹولز ریڈی کیپ یور ٹولز ریڈی کیپ یور ٹولز ریڈی وچو اگر کہاں چھان چھو نا تو اس کی اپنی ایسیسریز ہوتی ہے چھان یم سات وستاد چھ ونان ژاٹہٕ بجے مے دی ووگر کیا ہوتا ہے ووگر گام ووگر یہ کہ پنن ایسیسرین ناو پنن ٹولز یم چھ آسان یمن پنن مصطلح اسی طرح سے طالب علم کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں آپ کے ٹولز کیا ہے ابھی ہم نے دیکھا قلم نہیں ہے بیگ میں اتنا بڑا بیگ 5 kg کا بیگ اس میں قلم نہیں ہے یہ کون سا ریڈی آپ کون سے ریڈی ہے ہمیشہ یاد رکھیے آپ چاہے آپ کو کہیں بھی جانا ہو نا اپنے ٹولز آپ نے ریڈی رکھنے ہیں کلیئر کیا کیا جب آپ بھی اسکول جائیں گے تو بنیادی ٹولز کیا ہے لکھنے کا قلم 1 نہیں 2 نہیں 3 4 ہونے چاہیے اکھ کی بہت گھت اچھ نوان 5 رۄپین پین پتہ یوتام سہ مکلے نا برابر اینڈس تام توتام انو نہ بیاکھ یہ پرابلم ہے آپ 1 کے بجائے 3 رکھو اریزر اپنا ہونا چاہیے ایگزام میں برابر چٹ شارپنر اکس بیکس وہ سب سے نادان اسٹوڈنٹ ہے جو دوسرے سے ٹولز مانگتا ہے اپنے سارے ٹولز ہونے چاہیے جیومیٹری باکس امی خاطر اس میں سارے آلات ہوتی تھی اپنے کلیئر تو ہمیشہ یاد رکھیے وہ اسٹوڈنٹ بیوقوف بھی ہے پولیج بھی ہے اور نادان بھی ہے یس بیکن آشی ریلے کران ٹولزن ہند خاطر اپنا ہونا چاہیے سارا کٹ آپ کے بیگ میں پین اپنا کاپی اپنی اریزر جتنے بھی چاہے مطلب جو آپ کے درس میں امپورٹنٹ ہے تم گھن نمبر 1 اور دوسری بات یہ ٹولز کیا ہے تین پائی آسان صبح تین وردی کھت یتھے صبح سکول درائے ہور تہ وہ یور تہ دروازہ ٹائم یہ کھتو وردی کیوں آپ نے کہاں رکھی یہ آپ کا فالٹ ہے تھی بنائیے عادت اخ بنائیو آپ ایک کام کریں گے اپنا جو آپ کا روم ہے یا گھر کے سٹیزن آشی کمرہ وہاں پہ آپ کیا رکھیں گے ہینگر کیا تھا یہ بالکل آسان آج واٹر وغیرہ ہے اس میں ہینگرز ہوتے ہیں اگر نہیں آج دروازہ ٹھوس ہینگر کیا کریں گے آپ اس میں خود ڈالیں گے یہ تھی سکول پہ یو نا تھو وردی اتن کلیئر یہ بن نا عادتن اگر تھی پتہ غیر شعوری تھی انکانشیس تھی نا تھی تھو توتہ کتت عادتن تھو تھی پانے وردی تین پتہ سا تھونی ضرورت ورنہ تھی آئے اور پھینک دیا بیگ ایک سائڈ وردی بیکس سائڈ بوٹ بیک صبح سے ٹائم ووت
स्कूल टाइम अच्छे पे बैक वक्त सोरे ाड़न, ये अच्छी बात। अब क्या करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, अपने टूल्स को रेडी रखेंगे। इवन टूल्स मज क्या थी बुनियादी आपके क्या है, मसलन वर्दी है, आपका बैग है, जूते हैं या बाकी सारी चीज़ें जो है, इसके लिए आप एक सेटिंग रखेंगे। हाँ सर ये था भाई, ये था भाई, ये था भाई। या इसी तरह से किताब कोई आप ढूंढते एक खुद गई मैं हला मेरो कापी छाड़ान वह क्लासमेटन है वह कुछ दी में कापी, क्यों? यह है आसान कि आपने कोई इसमें शेड्यूल नहीं किया होता है, आपने अपने टूल्स को रेडी नहीं किए होते। बे गए पता सन तुम योर वन कड़ी सा किताब अच्छुन कलम, क्योंकि आपने देखा ही नहीं इस बैग में मैंने रखा कलम कि कहीं पे पे अपुस दिवान है मे थो सह पे खबर कत, गलत बात है। ये तुम दरस गए नीरो तो पहले आप अपने बैग को देखिए, मे पेन थोमुत, पेंसिल थोमुत, किताब सारे थमित, फिर चले। क्लियर? या इस तरह स्कूल आपने जाना है उससे पहले इसके लिए भी आप कुछ मिनट रखिए, आपने शेड्यूल करना है, मुझे अपने टूल्स रेडी होने चाहिए, ये मैं तक लगन। क्लियर? बगैर टूल्स क्या करो तुम वो सोल्जर जन गए तलवार जंग करने, सह क्या कर तक। क्लियर? एक सोल्जर तेल शूब ये तमिस हथियार तथे पे तालिब इलम अमिस क्या हथियार, इसका वेपन क्या है, इसके वेपन ये सारी चीज़ें हैं जो आपने दरकार होती है अपनी लेसन में, स्टडी में। तो आपके टूल्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए, पत गि पे ाड़न। लिहाजा इसके लिए आप खुद घर में एक सिस्टम बनाएंगे, एक तरीका बनाएंगे। मैंने सिंपल आपको बताया, हैंगर अख थो, अत हैंगरस पे थी पन पलो, हाँ सा ये गई ये वर्दी, ये गई ये पल, सुबह आए थो अत ब्या खुचन लगित, कलकत अत थो गरिक तुचान अमे हिसाब तम वुचान या कर छलन कर छलन। क्लियर? और बेल तुम शेड्यूल सन थो ना गरिक ग मजबूर तुम शेड्यूल सन थवन खतर, तुम पी तह कम कोर प्रेस कम कोर, नमन कोरन तुट फिक्र जो बनाते हैं ना खुद अपना ये जो कपड़ा वगैरह इसको प्रेस वेस वगैरह तुम कर पान, मगर अन सह होत पानस पे मटे, खुद अपना काम खुद कर, पान गम चीज़ कर, प्रेस थवन माज तम, प्रेस थवन बेन तम, खुद करे पन शेड्यूल बनाई प्रेस कर पान। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे आप, अब इसमें अपने टूल्स को रेडी रखेंगे। और एक एग्जांपल मैं इसमें दूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखी है, शख्स अख। क्लियर? ये समझो पहले, ये प्रेस मैं सारी खुद लकुट स्टूडेंट तमस वन बह शख्स अख। क्लियर? अम तुजम लेतर या मकतबर, यह षटान अख कुल, मगर यह मंड मकतबर, मोंड मकतबर तुम समझान क्या गई यस तीज आ यह अमे मंज अमे मकतबर षटान कुल। क्लियर? अम सा ब्या नफर दपन ऐ क्या गो यह मकतबर कर तीज, यह लेतर कर तीज, यह वोत और वापस दपन मे गस तथ मज टाइम जाय। सारे खुद लकुट स्टूडेंट कुछ ये नाव क्या आमिर, आमिरस वनो अम दिता असल जवाब, यह मे गस टाइम जाय अगर बह यह लेतर तेज कर या यह मकतबर तेज कर। अमिस क्या जवाब दिन, अमिस क्या कर ना, यह अच्छा जवाब है, बारकल्लाहु फीक। क्या तिज यूत टाइम जाय कर यह कुल ٹٹن मंज श्राक सत या मंज अमे क्या वन मकतबर सत या लेतर सत, अगर अम गई तेज करे अमिस कूत टाइम बचा। ऐसे लोग होते हैं, आधे बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, तम उल्ट समझान हुत सिस्टम बनाने से समझाएं गए खुरुद बुरुद बफक पे हिसाब ये पे नहीं। लिहाजा आपके टूल्स रेडी होने चाहिए, अरेंज्ड होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, आप खुद भी प्रिपेयर होने चाहिए। पत् बसान कि न ग पे परेशानी मे कोत गो हूँ पे वदन है मे रो फलन चीज़ मे फिसन चीज़ कहें। अपने टूल्स को रेडी रखेंगे। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है ए फॉर अरेंजमेंट, ए फॉर अरेंजमेंट। इसमें क्या आएगा अरेंजमेंट में, देखिए तो जिस होता है एग्जाम्पल बनाओ तो इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपना एक सिस्टम बनाओ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इस दरसगाह की, बह दिम ये इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, हर कुन रेत गि एग्जाम, 5 रेतन गसन 5 एग्जाम, 6 रेत बाद गि सेमिस्टर। यही तरीका है ना। फिर इस सेमिस्टर पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह, फिर मार्क्स कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें। अच्छा बनिम यम क्लास तत 3 बुक लगित लकटन क्लासन मज, जो हमारे जो प्री नर्सरी वगैरह है। ये हर खचो तक अख बुक पे बढ़ान, कुछ मज 4 कुछ मज 5 है ना। यही ये सिस्टम। खुदा ना खास्ता कल मुझे कुछ हो जाए या कोई टीचर कल यहाँ से निकल जाए या मैं निकल जाऊँ, मेरी जगह पे जो आएगा ना तमिस गई प्रॉब्लम ये पत कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? सिस्टम। और इंशाल्लाह हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि हम सारा ये लैपटॉप
बनाओ सो अरेंजमेंट, आपका A to Z, आपके रोल नंबर वगैरह एवरीथिंग, वो आप एक क्लिक करेंगे, फिर हम इस पर एक वेबसाइट बनाएंगे मुस्तकबल करीब में। एक वेबसाइट पे आपका सारे साल का, जहाँ से आपने शुरू किया है ना, सारे सालों का आप रिजल्ट देखेंगे, किस साल आपने कितने मार्क्स लाए, किस बुक में कितने लाए, क्लियर, ये सारा आपके सामने होगा एक क्लिक से, एक क्लिक के साथ। और कौन किताबें किस किस किताब में, कौन सी किताबें मनहज में थी, सिलेबस में थी, ये एवरीथिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये सिस्टम, अगर आप इसी तरह से सिस्टम बनाएंगे ना, कोई फिर अगर उसे निकल भी जाएगा मसले पे ना, ये तो वुचो तुम गवर्नमेंट निज़ाम, जैसे कोई दफ्तर आसान, आसान कल बास अख सबआर्डिनेट तमिस बे 20 25 30 50 100 तमिस गसान ट्रांसफर, यह सिस्टम रुकान, सह दफ्तर रुकान, सह बंद गसान, सिस्टम बना हुआ होता है। नफर अख यह आव हु द्राव, यह नेरि ब्याक यह, फर्क पे ना। यही आप ज़िंदगी में करो, अपनी ज़िंदगी को सिस्टमेटिक बनाओ, ताकि अम सत पे पगह फ़र्क, अगर कह नेर तम सत पे फ़र्क, हर एक जगह पे आप इसी तरह से आप अपनी जो आपके अवकात वगैरह इसको सिस्टमेटिक आप बनाओ अपने तरीके से, क्लियर। तो ये तकरीबन इसी में ज़्यादा आ गया, लिहाजा करना पढ़ना ज़्यादा कहें। इसके बाद है हमारा के नॉलेज, सर शूब कम से। अब मैं इसमें आपको एक टिप बताऊंगा, क्या करेंगे आप। ये अक्सर प्रॉब्लम गसान जो हमारे मैट्रिकुलेट होते हैं, ये 10th मज गुना अब कन्फ्यूजन, क्या करेंगे, आर्ट्स, कॉमर्स, मिड, नॉन मिड, कुछ और, क्या करेंगे। क्या अमिस में बेचारस पता है, 10th टाइम तो ऐसे ही शेड्यूल से चलता था। अब 10th के बाद इसने अपना करियर देखना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, और किस में ज़्यादा स्कोप ज़्यादा है, जैसे ये सारी चीज़ें आती है। वो क्या करें, यह गसान कन्फ्यूजन, पा वुचान हम क्या रोट बत रटती, फलन कोत गो बत करती, ये नहीं, अपनी इंटरेस्ट कहीं नहीं, अपनी पोटेंशियलिटीज़ को नहीं देखता है, अपने आप का जो एक्सपोजर इसका होता है वो नहीं देखता है, और नतीजतन ये कोलैप्स हो जाता है। इस सही तरीक कामयाब तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है जब भी ये कोई फील्ड अपने लिए चूज़ करे तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से ये राय ली। जैसे अब आप 10th मैट्रिकुलेट, सपोज आपने मैट्रिक किया, अब आपके सामने है मैं किस राह पे जाऊँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अपनी इंटरेस्ट को देखेंगे, मेरा रुझान किस में है, क्या मुझे जो मैट्रिक से नीचे की जो ये एज थी अत मज ओसा मे साइंस पे ज़्यादा होल्ड, मैथस पे ज़्यादा होल्ड, सोशल साइंस पे ज़्यादा होल्ड, इंग्लिश पे ज़्यादा होल्ड कि उर्दूस पे। सबसे पहले ये नहीं कि सहल क्या कर सहल वन सहल क्या मेहनत पे करें, ये ज़बरदस्त प्रॉब्लम, और फिर आगे जाकर कोई इसका टारगेट भी नहीं होता है। हम देखेंगे कि किस पे ज़्यादा मेरा होल्ड है। अगर मुझे मैथ पे होल्ड है तो आप नॉन मेड में चले जाए, अगर साइंस पे होल्ड है तो आप मेड में चले जाए, सोशल साइंस पे ज़्यादा होल्ड आप आर्ट्स में चले जाए, क्लियर। लेकिन दूसरा काम आपने क्या करना है, ये अमिक एक्सपर्ट्स आसान, सपोज कोई मेडिकल वाला है, उसने ग्रेजुएशन की है, पीजी किया, उससे आप राय ले, मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, मेरे इंटरेस्ट ये है, मेरी पोटेंशियलिटीज़ ये है, क्लियर। तो आप मुझे बताएं बकत फील्डस मज गस, और आगे मुझे बताएं स्कोप किस में क्या है, किस में मेरे ज़्यादा चांस है, इसमें स्कोप ज़्यादा है, वो आपको बताएगा। जैसे काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, अच्छी प्रॉब्लम हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको काउंसल कर दिया जाता है कि आप क्या करेंगे, वरना अक्सर आप देखें। और एक अप्रोच हमने बनाया है, बस एजुकेशन फॉर इकोनॉमी, तम सत क्या गसान, आप देखते खुदकुशी करते, रात रिजल्ट आव तो वो मज खुदकुशी, पूरा रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता, एक रिपोर्ट तो कम से कम ये है, वो भी बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, खुदकुशी। क्यों, इसने समझा मैं नाकाम हुई, बस मसला ख़त्म, वहाँ मेरी ज़िंदगी का वैल्यू नहीं। आप यही डेडिकेशन नहीं, हिम्मत हारा, क्लियर। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ज़िंदगी में फेलियर्स भी है, ज़िंदगी में सक्सेस भी है। तो आप फेलियर को लेकर अपने आप को बस ख़त्म करेंगे, ये कौन सी दानाई है, क्लियर। तो इसमें आप नॉलेज में क्या करेंगे, ये अमिक एक्सपर्ट्स आसन, उनसे आप टिप्स लेंगे। ख़ासकर आपके लिए, अगर आपने कभी सुनना होगा यूट्यूब पे, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, होते हैं ना कुछ मोटिवेशन स्पीकर्स, आप दे यूट्यूब में मोटिवेशन स्पीकर्स, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप उनकी क्लिप सुने, उससे हौसला मिलता है। मैं बहुत एक सुन बोजान कि उसको एक्सीडेंट हुआ, उसकी न टांगे है, टोटल टांगे नहीं, वो लेडी है,
उसने KS क्वालिफाई किया, टोटल टांगे नहीं है, तम पति करूँ KS क्वालिफाई। रात आपने देखा 10 ब्लाइंड थे, उन्होंने 10th क्वालिफाई किया। कच 10 ब्लाइंड पता कमिश ना, जिसके पास आंखों की बीनाई नहीं है। ये होती है डेडिकेशन, ये होती है कमिटमेंट। क्लियर, हिम्मत गई ना हारे। हाँ, इस फील्ड के जो माहिरीन है उनसे आप मशवरा ले, मुझे किस सिमत जाना है, कौन सा ये चीज़ करनी है, किस में स्कोप कितना है, आगे जाकर आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। क्लियर, अच्छुन मनचुन अच्छुन खोचुन कहीं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और आखिर पे हमारा क्या है, ई, आखिर पर ई, मिस्टेक, हमने मिस्टेक्स लिखा है, मिस्टेक। ई क्या होता है, ई होता है इथिक्स, इथिकल। हाँ, इथिकल, इथिकल। क्लियर, इथिकल क्या होता है, इथिकल का थीस बना, इथिकल क्या गो। अब देखिए क्या होता है, ये मैट्रिक कोरना, अब हमने सपोज मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है या कॉमर्स रोटेस। क्लियर, ये बनिस्बत आर्ट्स के माने जाते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होते हैं बनिस्बत आर्ट्स के, हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है। सोनिस तालिब इल्म से किसी ने शेड्यूल बनाया है, आपने टाइम टेबल बनाया है, आप टाइम टेबल में हर एक चीज़ रखते हैं, मगर एक चीज़ आप नहीं रखते हैं, वो क्या है, अपने क्रिएटर के लिए टाइम, अपने बनाने वाले के लिए टाइम। या कुछ ऐसे अखलाकियात होती है जिनकी पाबंदी आप पर लाजमी है। क्लियर, अस कर तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइप कस्म कंटिन्यू कत बिगनिंग से ही कि आप नमाजों के लिए अलग से टाइम रखें। जब आप टाइम शेड्यूल बनाएंगे ना तो नमाजों के लिए भी लोग, यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तिम बनावान टाइम टेबल, मगर नमाज खतर टाइम सुमन खतर टाइम थोमुत। या आप देखिए मैट्रिक से आगे जब अक्सर स्टूडेंट्स हमारे क्या करते हैं, तिम नमाज पर पढ़ा, दीन को ही भूल जाते हैं। या हमारे कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे 10th से चले गए, फिर वापस ही नहीं आए। आज रहे वाले स्टूडेंट, फिर वो वापस नहीं, अक्सर स्टूडेंट वापस नहीं आए, गए कहाँ वो, तिमो समझ शायद बस अस मकलो अब ये ख़त्म है। नहीं, आप इसके लिए टाइम निकालें। दरसगाह खतर कड़न टाइम, 1 घंटे कड़न, 2 घंटे कड़न, इथे पे नमाज खतर टाइम कड़न। क्लियर, प्रेयर टाइम थवन। और दूसरी बात, कुछ अखलाकियात है यम गसन लाजिम आसिन तालिब इल्म में। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो क्या कहते हैं इसको, वादा, अपने वादों की वफाई करनी है। आपने किसी को कहा है कि इंशाल्लाह इस टाइम पे पहुंचूंगा, जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल है, तशेद पर्टिकुलर एक टाइम टेबल है ना, यहाँ पे एक टाइमिंग है। आपने मसलन 4:45 पे यहाँ पे पहुँचना है। कुछ लोग 5 बजे आते हैं, कुछ लोग 5:15 बजे आएंगे, तो ये सही बात, ये वादा है। आप जब किसी से कोई वादा करते हैं टाइम की पाबंदी, तो आपने टाइम की पाबंदी करनी है, उसे धोखा नहीं दे। ये वारिया वन अपोज, मगर सह बासान सह तिमन अपोज बासान, दीनदार तो गौर तिम क्या वन मोबाइल पे कत भाई वोतुस बह के ब्रोट कन सह 10 किलोमीटर दूर, झूठ बोलते हैं। ये क्या वोतुस बस चे नज़दीक वो कुछ वुचस मोबाइल मज पता े प्यार 5 मिनट बह आव सह गंटस तहन यह सोचान हमिस कूत गो जाए, सीधे कह देता मे वनकस टाइम कहें बह ये टाइमस पे, इसमें क्या है ना, प्यार 5 मिनट होर 50 काम कर नतीज नान बेक सुन टाइम छना। ये होता है इथिकल। इथिकल ये होता है कि आप अपने वादों की पाबंदी करें, अपने अहदों की पाबंदी करें, क्रिएटर के लिए टाइम निकालें, दरसगाह के लिए टाइम निकालें। क्लियर, और जो एक स्टूडेंट का डेकोरम है वो हम पढ़ते हैं किस में, हिलिया, तो वो सारी चीज़ें सोचते हैं लाजमी तिम चीज़, क्योंकि ये छोटे हैं अभी तो इनका खतर तिम लाजिम, वो सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। तिमो सान तेल कामयाबी खतर यम उसूल। क्लियर, इसमें कोई मसला। और दूसरी बात, आखिरी चीज़ जो मैं इसमें यह है कि एक्नॉलेजमेंट करना सीखे। ये इथिकल में ही आएगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या गो, हाँ, एक्नॉलेजमेंट इसको हम उर्दू में कहते हैं एतराफ़। क्या चीज़ वनान, एतराफ़। अब मसलन आपसे मिस्टेक हुई, क्या करेंगे आप, बिला करो ये वाल दिस में कि जीर ये पे हाँ ना, अरे एक्नॉलेजमेंट कर, इसमें क्या है, शोध मानी मुझे गलती हुई, इसमें क्या है ना। ये दस्तरखानस पे 3 गिलास पेवान पत क्या वन गर दपान यह दित 3 गिलास बिला अगर मे दित अत गो ये पे अत कोर
कभी हम पानस पे मटी कर्मे कोर्मुत प्याल फुटन चूर चूर लगावान कुकुन घर सह प्याल ये सह कत अस भाई सह कम सियोद वन मैंने फुट प्याल इसमें क्या, हाँ बेइज्जती पे, मुमकिन बेइज्जती पे, मगर इससे आपके अंदर सच्चाई की जो ये इथिकल है ना, ये इथिक्स सच्चाई ये आप में हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यम अखलाकियात। कभी भी एतराफ़ करे, किसी से कोई वादा किया नहीं पहुँचे, मुमकिन ट्रैफिक जामस में फंसे, या कोई घर में इतनी इंपॉर्टेंट वर्क पड़ी नहीं पहुँच सके, क्या कहेंगे आप? मुझे माफ़ कर दीजिए, माज़रत, आई अपोलोजाइज, इस तरह के अल्फाज, मैं गई माफ़ी, असल मसला ये था, मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा, मैं उसने ये पता है इसमें क्या है। और तुम वो ये सातन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम गलती करना, एज़ पर जो उलमा है ना, उलमा कहते हैं कि शैतान जो इब्लीस ने गलती की ना, उससे बड़ी गलती किसकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की। इब्लीस की उतनी गलती क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया, आप फलां दरख्त के पास मत जाए, फला तक़रबा हाज़िही शजरा। आने इब्लीसस क्या वोनुक, तमिस दितुक अमर स कर, ये अमर तो नहीं ज्यादा कुस नहीं, ये पे मना आमुत कर। मगर देखिए फितरत क्या है, आदम अलैहिस्सलाम को एतराफ़, उसने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बा अशकुर पन्ने नफ्सन पे, यानी एतराफ़ किया। शैतान ने क्या कहा? कहा आना खलक़तु मिन नार व खलक़तुहु मिन तीन, अव कमा क़ाल, कहा उसको आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं क्यों झुकूँ? मैं कर एतराफ़। नतीजतन क़यामत तक हम लानत फटकार किसको कहते हैं? और आदम का नाम सुनते ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते। अब आपने आदम बनना है, इब्लीस बनना है? आदम की खसलत क्या थी? एक्नॉलेजमेंट, एतराफ़ करना, गलती हो जाए एतराफ़ करो, क्लियर? इसमें आपका खर्चा भी नहीं जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।